श्रीमती नवनीत राणा जी, मैम 5 मिनट्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एंड we support and I support this bill. It's a very good and bold initiative by the government. It will enable faster, longer-term infrastructure growth of the country by making availability of timely and easier way of long-term finance through establishment of our key institution. And National Bank for Financing Infrastructure and Development, timely finance is the major roadblock in the infrastructural development which this bill effectively address. There are various good measures like of infrastructures, receivables, take over the existing finance and even conversation of loan inequality, which shall surely help infrastructure sector. The bill also proposed development of bound and market necessary for infrastructure financially, thereby helping the agency to raise low cost funds and effectively reducing cost of project and lower burden to public. Despite getting best infrastructure, the bank is being established with the development objectives, the coordination with the central and state governments, regulators, financially institution, investors, and such other relevant stakeholders to facilitate building and improving the relevant institutes to support the development of long-term non-resource infrastructure financially in India, including the domestic bonds and market, shall also help some medium enterprises in this sector and grow properly. Propose. I just congratulate the Finance Minister regarding this bill. The way the COVID has come in India and the people are facing a problem, and after still we are focusing on India's infrastructure development and we are giving some nice budget to infrastructure that India should get developed and form some other thing in upcoming years. And according to me, मैडम, जो भी चीजें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हर राज्य को और केंद्र को दिया है, आने वाले समय में आज उसमें खामियां निकालने से कुछ नहीं होगा. We have sacrificed our 2 years MP land fund for the development of this country, and I request few of my colleagues, they have mentioned कि the MP land fund what we have given to the central government, अगर जान ही नहीं रहेगी तो हम काम और डेवलपमेंट करके क्या करेंगे. इसलिए जो एमपी लैंड फंड दिया गया है, जो हेल्थ इशू पे दिया गया है, उसको प्रॉपर्ली अगर तालुके प्लेस में, हॉस्पिटलाइज में, मेडिसिन में, मेडिकल्स में अगर यूज करते हैं तो आई थिंक ये जान से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. और आपने जो एमपी लैंड फंड लिया इसका दुख है, पर एक बात से हम जो जान बचा रहे हैं इस देश में उसके भी साथ खड़े हैं कि जान से बढ़कर इस देश में कोई चीज नहीं है, तो उसका भी अप्रिशिएट करते हैं. और अभी बहुत सारे कलीग्स ने from Maharashtra, they spoke about GST. The amount has to be given by the central government. GST is remaining with the central government. We all knew from last 1 year we facing very horrible time in India. और हमें उसका बोलते हैं कि भावना पता है कि आपका नहीं देने का कारण क्या है, पर फिर भी मैं आपसे विनती करूंगी जो जीएसटी हमारे महाराष्ट्र की सेंटर के तरफ कुछ बैलेंस है, आपने कृपया करके अगर वो जीएसटी देंगे, क्योंकि हमारे राज्य में आज हॉस्पिटल की परिस्थिति बहुत खराब है. पूरे देश में अव्वल नंबर में हम कोविड में हैं, हम अच्छे कामों पे नहीं हैं. अव्वल नंबर है डेथ रेट्स में, हम अव्वल नंबर है कोविड में सबसे आगे नंबर्स में. तो मुझे लगता है अगर आप जीएसटी के द्वारा कुछ हमें दे सकेंगे तो हॉस्पिटल में डेवलपमेंट्स होंगी, हेल्थ सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी और कुछ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा हम हमारे महाराष्ट्र में कर सकते हैं. फार्मर्स की परिस्थिति बहुत खराब है, जहां किसानों पे अनवांटेड रेन भी, बारिश ये 3 दिनों में आई है, उसके तरीके से भी हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स संकट में हैं. उसके बाद ये बात कर रहे हैं, हमारे सभी लोग दुख है, हम लोगों को वो सब चीज का अनुभव है, सभी के घरों में कार है, सभी नॉर्मल लोग एक्टिवा से लेके 4 व्हीलर तक चलाते हैं. जो जीएसटी और जो वैट हमारे पेट्रोलियम और डीजल में लगता है, अगर आपने पूरे देश में अलग अलग राज्यों का हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैट और इंटरेस्ट जो प्रॉफिटेबल है वो हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार लेती है. और उसके पहले बहुत देवेंद्र फडणवीस साहब जब थे तब इन्होंने जो भी टैक्स रेट्स बढ़े थे उसमें कम करके हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुविधा दी. उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से विनती करूंगी कि दिस इज
एक्चुअली दिस इज द सब्जेक्ट मैडम, एक मिनट लास्ट का। तो इसमें भी कुछ आपके तरफ से अगर राज्यों को मदद हो सके तो पेट्रोल और डीजल के लिए भी आप लोग मदद करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट्स ऑफ इसमें प्राइस बढ़े हैं, तो उसमें भी आप मदद कीजिए। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगी, जिस तरीके से ओडिशा ने 20.6% पे अपना इंटरेस्ट लागू किया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र भी कर सकती है, जो आज महाराष्ट्र 26.9 टैक्स लेती है। अगर महाराष्ट्र के लोगों को, जनता को सुविधा देनी है, टैक्स में कमतरता लानी है, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट छोड़कर लोगों की भलाई इसमें सोचना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। एंड Madam, I support in this bill to you, because in the COVID also, you have got a very good bill about related to infrastructure. Thank you so much, Madam. Shri Bhola Singh ji.